tiny and how are they tiny? So the thing that we need to do for experimenting, the thing is very simple. Dissolve 2 to 3 crystals of potassium permanganate. Now there is a chemical component called potassium permanganate. If you guys remember, we do have did this experiment last year, I think. Yeah, last year science marathon science thing was there, exhibition was there. We have taken potassium permanganate and did this experiment, color changing chameleon experiment. Remember anyone? Anamika, you also did. Yeah. हाँ, सो जो भी बच्चे लास्ट ईयर थे 8th क्लास के बच्चों से भी आई एक्चुअली हैव, yeah. So this is the experiment that we did last year with the potassium permanganate. Okay, last year के आपका जो science exhibition में we have did this experiment. Now see, this year I don't think that there is going to be any science exhibition or anything like that, obviously, because the school is not going to open. So yeah, very sad to know. Now dissolve 2 to 3 crystals of potassium permanganate in 100 ml of water in a beaker. We take a beaker, okay. Now we took a beaker and what we do? We will dissolve potassium permanganate. Here is the beaker. We have taken 100 ml of water and we have put the potassium permanganate, just 2 to 3 crystals, very few. You know that is very, very, very what we call that, that makes the water very colorful. Okay, so we need not to put too much of potassium permanganate. We just need 2 or 3 crystals of that. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. So from this, what will we do? We'll take the 10 ml of solution outside, okay, in a small funnel. Now what we do? We add this to the other beaker which has 100 ml of water, which means the 10 ml of highly filled of KMnO4, highly dissolved KMnO4 solution is being added to what? 100 ml of water. When we added it, now what will happen? The color will be fainted, which means color क्या हो जाएगा बच्चे? Faint हो जाएगा, है ना? Color क्या हो जाएगा? Faint हो जाएगा, धुंधला होता चला जाएगा. We did it with the use of oxygen and a straw, but here we can do this method also. Now what happens? Take 10 ml of this solution and dissolve 100 ml of water, and now repeat this process 5 to 6 times. When you continue doing this, what will happen? Ultimately, the solution will start becoming fainter and fainter. The solution will start losing the color उसका धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? Faint होता चला जाएगा. Okay, color lose करता जाएगा. इससे क्या पता चलता है? That a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal. एक क्रिस्टल में millions and millions of tiny particles होते हैं, तभी तो 100 ml वाटर को इतना ज्यादा कलरफुल कर दिया. तभी तो हम लोग जैसे जैसे क्या करते चले गए, कम पानी लेते चले गए, which means सॉल्यूशन का केवल 10% जो है 10 ml वो लेकर के 100 ml वाटर में डालते चले गए. तभी तो हमने देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहा है तो कलर फेंट हो रहा है. हाँ, पार्टिकल्स का संख्या पहले ज्यादा था, तभी तो बाद में कम हो गया तो कलर क्या हो गया? डिस्कलर हो गया. अगर पहले पार्टिकल का संख्या ज्यादा नहीं होता तो फिर कलर तो सेम रहता. पहले पार्टिकल का संख्या और लास्ट में पार्टिकल का संख्या अगर सेम रहता तो फिर तो कलर भी सेम रहना चाहिए. तो कलर बदलना क्या शो करता है? इट शोज दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव बीन रिड्यूस्ड, which means the particles are very small and they do their job very perfect. बहुत ही अच्छे से अपना काम निभाते हैं, ठीक है, और कलर कर देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के. ऐसे ही दूसरे कंपाउंड के भी हो सकते हैं. नाउ the third thing is that the particles of matter have a space between them. This is something that we need to prove. How will we prove? We'll do the same experiment, the first experiment. Take some water in a beaker and note its level, water level. Dissolve some salt or sugar in it with the help of a glass rod. We'll take the glass rod or a stirrer and stir it. Now what will happen? The salt dissolves in the water but the level of water does not change. पानी डिसॉल्व हो गया लेकिन चेंज नहीं हुआ. क्या चीज? वाटर का लेवल. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सॉल्ट का पार्टिकल्स है, that must have been somewhere between the particles, the interparticular spaces between the water molecules. वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है उसके बीच में सॉल्ट का पार्टिकल गया होगा, तभी तो वाटर लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया. ठीक है, स्पेस अगर नहीं भरता, अगर स्पेस नहीं रहता तो फिर ऑब्वियस सा बात है ना, किसी चीज के पास जगह नहीं है तो अगर आप उसके अंदर क्या करोगे, और भी चीज डालोगे तो उस चीज का लेवल तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा. लेकिन जब इसके पास जगह था तभी तो आप नमक या फिर चीनी डालने के बाद भी वो जगह जो है वो नहीं भरा और जगह जो है वो खाली था, तभी तो उसमें वो फिल हो गया.
This shows that there used to be a certain distance between the particles. Okay, now, so particles of matter are continuously moving. This is something that we need to prove by an activity. Very simple to prove. Take some water in a beaker. There is a beaker here. We took some water. We have taken some water and put a drop of blue or red ink. Either you can take the blue ink or the red ink into it. What will happen? Along the sides of the beaker, leave it to undisturbed for a few hours. कुछ घंटों के लिए छोड़ दो इसको. The ink spreads evenly throughout the water. Ink जो है पानी में इधर से उधर पूरा एकदम इक्वली इवनली यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, मिल जाएगा. ठीक है. नाउ leave it undisturbed for a few hours. The ink spreads evenly throughout the water due to the movement of the particles of the water in ink. ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हुआ? There must be some reason and the reason is very apparent. बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है रीजन. वो क्या है कि इंक के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स आपस में क्या कर गए, फ्यूज कर गए, इंटरमिक्स कर गए. ठीक है. और वो एक दूसरे के साथ मूव किए हैं. ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड किए हैं, जिस कारण से वो आपस में डिसॉल्व हो गए, पूरी तरह से घुल गए हैं. द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. खुद से, बिना किसी कैटलिस्ट के या फिर बिना किसी प्रोवोकिंग एजेंट के, कोई ऐसा जो क्या करे, प्रोवोक करे, क्या करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए, घुलने के लिए. ठीक है, आपस में डिसॉल्व करने के लिए. तो बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के जब दो क्या हो जाए, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, एक तो इंक एक वाटर जैसे एग्जांपल हम लोगों ने लिया, वो आपस में घुल जाए, मिल जाए. ठीक है, और intermix हो जाए. This is a simple thing that we need to understand, and this process is called what? Diffusion. We call this process is diffusion. Diffusion, which means fusion of the two different types of matters together when they are put together and without being dependent on any other factor. बाहर के किसी फैक्टर पर डिपेंड हुए बिना ही, ठीक है, किसी प्रोमोटिंग एजेंट या फिर प्रोवोकिंग एजेंट के सपोर्ट के बजाय खुद से खुद में क्या हो जाए, दोनों पार्टिकल्स आपस में इंटर पार्टिकुलर मूवमेंट के कारण एक दूसरे के डिसॉल्व हो जाए. तो इस चीज को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन. उनका फ्यूज करना आपस में कहलाता है डिफ्यूजन. ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज आल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, व्हिच मींस जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, मैटर जिनसे बनता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, नाउ टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज, हूएवर वाज आस्किंग, टेल मी. जोर से बोलो बच्चे, आवाज नहीं आ रहा आपका. कीप द माइक्रोफोन क्लोज टू योर माउथ. हाँ बोलो. डिफ्यूजन कब होता है? अभी इतना देर से हम क्या बता रहे थे बच्चे? जब कभी भी दो पार्टिकल्स, दो मैटर्स को, दो डिफरेंट मैटर्स को एक दूसरे के क्लोज लाया जाए और दोनों को एक दूसरे के साथ रखा जाए, तो दोनों के दोनों, अगर दोनों के दोनों मैटर के पार्टिकल्स आपस में बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के इफेक्ट के कारण खुद से खुद में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर जाए, व्हिच मींस उनका पार्टिकल का मूवमेंट हो एक दूसरे के साथ, सो दैट थिंग इज समथिंग व्हाट वी कॉल द डिफ्यूजन. तब होता है डिफ्यूजन, जब दो मैटर को आपस में क्लोज लाया जाए एक दूसरे को. जब एक को पानी में घोलिएगा तब होगा डिफ्यूजन. हाँ बताइए, बताइए. और कुछ? नो. और कुछ पूछना है? अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें कुछ पूछना है किसी को? एनीवन? ग्रेट, देन लेट्स मूव एंड बी अटेंटिव. क्लास में अटेंटिव रहें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर्स ऑफ योर्स आर एक्चुअली गिवन without your being asked, without you being asked, without you being asked. Okay, so आपके पूछने से पहले. Now see, particles of matter attract each other. This is something that we need to prove. Take an iron nail, एक लोहे का कील ले लो. A piece of chalk ले लो, ठीक है, जो आपका बोर्ड पर लिखने के लिए होता है, उसका एक टुकड़ा, और एक रबर बैंड ले लो. ठीक है, and do this experiment. Try breaking them by hammering. तीनों को तोड़ने का कोशिश करो. एक हैमर ले लो, हथौड़ा ले लो, या फिर कोई भी ऐसा हैवी चीज ले लो, और उससे लोहे के कील को तोड़ने का कोशिश करो. हाँ, उसके ऊपर मार करके. चौक जो है उसको तोड़ने का कोशिश करो, और रबर बैंड जो है उसको हथौड़ा मार करके तोड़ने का कोशिश करो. देखो क्या होता है. ओके, या तो हैमरिंग करो, और पहला चीज हैमरिंग करो, दूसरा चीज कटिंग करने का कोशिश करो. किसी शार्प नाइफ वगैरह ले लो और उससे लोहे की कील को काटो, चौक को काटो, रबर बैंड को काटो, देखो क्या होता है. या फिर स्ट्रेच करने का कोशिश करो.
लोहा का जो कील है उसको खींचने का कोशिश करो, चौक को खींचने का कोशिश करो, रबर बैंड को खींचने का कोशिश करो, ये 3 काम करो, तुम क्या देखोगे, इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चौक, चौक को हैमर करके, विच मीन्स हथौड़ा चला करके तोड़ना आसान है, लेस इजियर टू ब्रेक द रबर बैंड, और किसके तुलना में, चौक के तुलना में रबर बैंड को हथौड़ा मार करके तोड़ना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। हथौड़ा मार करके तोड़ना, लेकिन स्ट्रेच कर करके, खींच करके तोड़ना किसको ज्यादा आसान है, खींच करके तोड़ना आसान है किसको, लेस इजियर, किसका, रबर बैंड का, ठीक है, बाय स्ट्रेचिंग, एंड डिफिकल्ट, तो आप ये कह सकते हो कि सर चौक को भी खींचेंगे तो टूट जाएगा, नहीं, चौक को खींचने से वो नहीं टूट रहा है, जब आप उसको खींचने का प्रयास कर रहे हो तो उसके उस ऊपर फोर्स लग रहा है, क्या करने का, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसको ब्रेक करने का, वो फोर्स कैसा फोर्स है, वो स्ट्रेचिंग फोर्स नहीं है, क्योंकि चौक इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ही कम शो करता है, चौक स्ट्रेच होता नहीं है, तो इसलिए आप उसको स्ट्रेचिंग कह नहीं सकते, स्ट्रेचिंग के कारण टूटना, रबर बैंड स्ट्रेच होता है और स्ट्रेचिंग के कारण टूट जाता है आसानी से, नेल जो है वो नहीं टूट पाता है, एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल, और आयरन नेल को हैमर करके तोड़ना या फिर कट करके तोड़ना, कट कट करके अलग करना या फिर स्ट्रेच करके तोड़ना, सब कुछ मुश्किल है, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि आयरन नेल का जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा बड़े फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ क्या है, अट्रैक्टेड है, यानी उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कंपेयर टू रबर बैंड और चौक, रबर बैंड और चौक के तुलना में जो आयरन नेल है, लोहे का कील है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसका जो उसका वो जिस मैटर से बना है उस मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए उनका स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब ज्यादा, ड्यूरेबिलिटी तो नहीं कह सकते, उसके लिए बाकी सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन वगैरह का केस हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, हाउ डज दैट मैटर एक्चुअली, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, बट फॉर नाउ यू मस्ट नो दैट वेरी बेसिक थिंग, वेरी बेसिक थिंग, एंड द बेसिक थिंग इज व्हाट, कि जब पार्टिकल्स के बीच का स्पेसेज कम से कम हो और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो फिर उनको ब्रेक करना, कट करना, स्ट्रेच करना, ये सब कुछ ज्यादा मुश्किल होगा कंपेयर टू जब उनके बीच का स्पेसेस ज्यादा हो, या फिर उनके बीच का स्पेस ज्यादा ना भी हो तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो कम हो, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल का कंपोजिशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिफरेंट होता है अलग अलग एलिमेंट के लिए, और उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, which is not our worry, which is not our thing to discuss about. Okay, tomorrow we'll discuss about the states of matter, properties of solids, liquids and gases. Till now whatever we have studied, if you have any problem you may ask your question, you may raise your point.